Hello everyone, welcome to the class. I hope you all are doing well and great. So, yes, do your best preparations for your boards. And yes, this is your 8th chapter for class 12th and the living art tradition of India. In which we'll discuss about the local or native or we can say traditional art forms like Mithila painting or we can say Madhubani painting and Warli painting or Gone painting and Pithoro painting. So like these. Okay, so ये जो chapter है chapter number 8, this is not in CBSE, this is on Rajasthan board. So this is a requested video and these are the local arts, traditional art और folk art और we can say tribal art जो भी आपके हर competitive exams में भी आती हैं. So let's do this. So there has always been, तो ये इसका थोड़ा सा intro पढ़ लेते हैं. There has always been a timeless traditions of art forms जो कि धीरे धीरे चलती रहती हैं अपने टाइम से एंड एक एरिया से दूसरे एरिया में भी पहुंच जाती हैं. लिविंग फार फ्रॉम अर्बन लाइफ इन इंटीरियर terrains of forest, desert, mountain and villages. So far we have studied art ऑफ अ सर्टेन टाइम जो पहले हमने पढ़े हैं अलग अलग टाइम पीरियड की, अलग अलग राजाओं की, अलग अलग पैटर्न्स की या फिर डायनेस्टीज़ की हु रूल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. बट नाउ we are discuss about we will study about what, about common people, about normal people. So were they creative, were they not creative? Was there no art that existed around them? Yes, of course it existed around them. तभी तो हम इतने सारी जो फोक आर्ट्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, रिचुअल आर्ट है या फिर कहेंगे यूटिलिटी आर्ट, उस पर हम पढ़ते हैं. सो यूटिलिटी आर्ट कौन सी है? यूटिलिटी आर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था इस बार. क्या क्वेश्चन था अभी मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं, बट येस देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन यूटिलिटी आर्ट एंड दिस इज़ रिलेटेड टू traditional art or traditional living art of India. So our country has always been a repository of indigenous knowledge. Now what is indigenous? That is native or ancient or original we can say. So which has been transformed from one generation to another generation. Artist in each generation has created the best of his works out of available जो भी वहाँ पे material होता है and जो भी technique होती है according to that. So many scholars name these art forms as So many scholars name these art forms as minor arts या फिर utility art क्योंकि दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है जो पॉटर है वो पॉट बना रहे हैं और इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट एंड दिस इज़ यूटिलिटी आर्ट बिकॉज ये यूज़ होने वाली चीज़ें हैं. सो जो यूज़ होने वाली चीज़ या फिर जिसका कोई मोटिव होगा तो ये यूटिलिटी आर्ट में ही आएगा. और वी कैन से फोक आर्ट एंड ट्राइबल आर्ट, पीपल्स आर्ट, रिचुअल आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सो ऑन. And the examples in prehistoric cave, we also found that works of pottery, terracotta, bronze, ivory, etc. of the Indus period as well. So we find reference of artist communities everywhere where they made pots and dresses, jewelries, and the rituals of votive sculpture. Now what is sculpture? Votive word is formed from vow.
वही कोई मोटिव को जो पूरा करे, कोई इच्छा को पूरा करे, कोई वाव को पूरा करे, दैट इज votive votive sculpture. They decorated their walls and floors, and they did not and they did more artistic things to fulfill their daily lives needs and supply their work to local market. So अपनी daily needs को भी ये पूरा करने के लिए जो जो उसमें यूटिलाइज होता है उसको भी ये डेकोरेशन करते हैं या सजाते हैं, स्कल्पचर के रूप में उसको बनाते हैं. एंड ऑल्सो देयर वर्क टू लोकल मार्केट में भी उसको सप्लाई करते हैं, जिससे उनकी अर्निंग होती है और जो उनकी कला है, जो आर्ट है, वो दूसरे एरिया में भी पहुंचती है, उसके बारे में उन लोगों को पता चलता है. विद एन आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें सौंदर्य भी होता है. एंड दिस देयर इज़ अ सिंबल ऑफ स्पेसिफिक यूज़ ऑफ मोटिव्स, मटेरियल्स, जो कलर्स होते हैं, मेथड्स ऑफ मेकिंग होता है, इसका भी आदान प्रदान होता है, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में लोग जानते हैं. एंड yes, so post independence revival of handicraft industry. Why post independence? because पहले तो हम लोग war में and we want independence, so इन सब में अटके हुए थे. and now India, after independence, there is a revival of handicraft industry took place. The sector became organized for commercial production. उसमें भी commercial production होने लगा. जो लोग छोटे लेवल पे अपनी डेली यूज़ के लिए जो काम करते हैं वो अब उसको मार्केट तक लेके जा रहे हैं. with their unique idea and aesthetic expression. With the forming of states and union territories, each one of them showcased their unique art. अपने अपने एरिया के, अपने अपने रीजन के सभी अपनी अपनी आर्ट दिखा रहे हैं, जो सबसे सब में अलग हैं, जो डिफरेंट हैं सारी की सारी. एंड the art and craft traditions of India showcase the tangible heritage of the country with history of more than 5,000 years. Now, what is tangible heritage? So, tangible heritage includes sites of buildings and monuments, historic places, as well as artifacts and objects that represent the history. कि history में ऐसा ऐसा होता था या इस तरह के artifacts बनते थे. And of course, archaeology and culture of a particular area. So, that is tangible history. And there has been a religious and ritualistic overtone with a richer symbolism. Day-to-day practice at home to production on a large scale. So now we will discuss about some painting traditions like मिथिला और मधुबनी. मधुबनी पे एक और मेरा फुल डिटेल में वीडियो है जो कि सारा ही मधुबनी पेंटिंग्स के ऊपर, सो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं. एंड इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑन मधुबनी या फिर मिथिला आर्ट जिसे कहें, वर्ली पेंटिंग ऑफ महाराष्ट्र, पिथौरा पेंटिंग ऑफ नॉर्थ गुजरात एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश, बापूजी की फड़ फ्रॉम राजस्थान, पिचवाई ऑफ नाथद्वार इन राजस्थान, गोंड एंड सांवरा पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश, Patchitra of Odisha and Bengal. So these are some of examples of them, and a few of them we have discussed. Okay, so number one, Mithila art or Mithila painting. And Mithila the ancient या फिर जो नाम था इनका विदेह and the birthplace of Sita. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं. एंड पॉइंट्स में इस बार आपको अपना लिखना है क्वेश्चन पेपर. पॉइंट नंबर जैसे डाल दिया ऊपर, मिथिला पेंटिंग पॉइंट नंबर 1, दिस पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3. सो इससे एग्ज़ामिनर को भी इजी रहेगा और आपको भी इजी रहेगा याद करने में और एग्ज़ामिनर को चेकआउट करने में. So these also called Madhubani paintings. and Madhubani क्या है, near the district of capital, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ पे मधुबनी, so उसके नाम से भी इसको जाना जाता है. and it is presumed that centuries women
लिविंग इन देयर रीजन, जो औरतें महिलाएं जो यहाँ पे रहती हैं वो उनको पेंट करती हैं, फिगर्स बनाती हैं एंड डिज़ाइंस बनाती हैं ऑन वॉल्स ऑन देयर मड हाउसेस, मिट्टी के जो घर हैं उनके ऊपर उनको डेकोरेट करने के लिए ऑन ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स एंड ऑल। और ये जो आर्ट है इसका ओरिजिन माना जाता है फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रिंसेस सीता इज़ गेटिंग मैरिड टू लॉर्ड राम। सो इसको जो किया जाता है वो 3 जगह किया जाता है, जैसे घर में किया जाता है 3 जगह, 3 एरियाज ऑफ द हाउस, सेंट्रल, आउटर एंड कोर्टयार्ड्स जो आंगन में है। सेंट्रल मतलब जो घर के बीच में जो तुलसी का जो होता है, क्या कहेंगे उसको, स्टैंड साइड बना दिया जाता है सेंटर में आंगन में या फिर घर के आंगन में। आउटर मीन्स जो आउटर वॉल्स जो हो जाएंगी उनके ऊपर, एंड कोर्टयार्ड जो आंगन वगैरह हो गया वहाँ पे जो डेकोरेशन होगी। सो ये सब यहाँ पे 3 जगह पे किया जाता है, विच इज़ ऑल्सो ड्वेलिंग प्लेस ऑफ कुल देवी, जो कुल देवी का भी जो प्लेस कहा जाता है घर में। यहाँ पे है यूजुअली काली माता को जो कुल देवी माना गया। सो ये कुछ नाम्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। Various armed gods and animals of images of women's work like carrying water pots and जो भी 8 subjects हैं किस किस टॉपिक्स पे ये आर्ट बनती थी। In the recent recent past, many paintings are done on fabric पे, पेंट पे, पेपर पे, पॉट्स पे। सो धीरे धीरे जो है वो मीडियम भी इसका चेंज हो रहा है, जो पहले सिर्फ दीवारों पे बनती थी अब फैब्रिक पे भी, पेपर पे, पॉट्स पे, जो कमर्शियल पर्पस के लिए बनती है। एंड so among other themes are painted are एपिसोड्स फ्रॉम भगवत पुराण से भी कुछ एपिसोड्स को यहाँ पे बनाया गया है, कुछ रामायण से, स्टोरीज ऑफ शिव एंड पार्वती, दुर्गा, काली, रास लीला ऑफ राधा एंड कृष्णा। एंड मिथिला के जो आर्टिस्ट हैं, दीज जो आर्टिस्ट डू नॉट लाइक एम्प्टी स्पेस, बट अब होने लगा है। अब आप अगर बनाएं तो आपकी इच्छा है, बट ये बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल जो आर्टवर्क्स जो पहले होते थे कि वो एम्प्टी स्पेस को पसंद नहीं करते, दे फिल इन द एंटायर स्पेस डेकोरेटिवली विद एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स उसमें डाल देते हैं डेकोरेशन के लिए, लाइक बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, फिश, स्नेक्स, द सन, द मून, विच ऑफन हैव सिम्बॉलिक इन इंटेंट एंड वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी। सो ये सब वो उनमें एलिमेंट्स डाल देते थे, उसको भर देते थे। एंटायर डेज दे मेड द कलर फ्रॉम मिनरल स्टोन्स से बनाते थे, ऑर्गेनिक थिंग्स से बनाते थे, सच एज पलाश एंड कुसुम फ्लावर्स, बिल्वा लीव्स, काजल, टर्मरिक। सो इनसे अलग अलग कलर्स वो बनाते थे। So move on to next we have to discuss is Warli art or Warli painting. The Warli community कहाँ से belong करती है? नॉर्दर्न महाराष्ट्र से, and the North Sahyadri range with a large concentration in the district of Thane. सो ये मेनली रिलेट करते हैं महाराष्ट्र से, एंड जो मैरिड वुमन जो होती है वो इस आर्ट को यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेंट्रल रोल इन क्रिएटिंग द देयर इम्पॉर्टेंट पेंटिंग कॉल्ड चौक, जिसे कहते हैं टू मार्क स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे कि रिचुअल्स ऑफ मैरिज, फर्टिलिटी और हार्वेस्ट और न्यू सीजन शॉविंग। चौक इज डोमिनेटेड बाय द फिगर ऑफ मदर गॉडेस, जो कि जैसे यहाँ पे बोला गया है पालघाट। Okay, so
goddess of fertility and सो ये कुछ यहाँ पे इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हैं. सो दिस इज़ वर्ली आर्ट, जिसे मैथमेटिक्स से भी जोड़ के देखा जाता है, जैसे ट्रायंगल बना के और सर्कल का यूज़ करके एंड विद लाइंस. सो इस तरह का कुछ ह्यूमन यहाँ पे बनाया जाता है. यहाँ पे इसके हाथ हो गए. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसे ही बनाया हुआ है ट्रायंगल शेप में. दीज आर ऑल्सो. Yes. See this figure and you will understand. सो यहाँ पे और डेकोरेशन एंड की जाती है. सिम्बॉलिक ऑन किसका सिम्बल्स है ये? हरियाली देव, दैट इज़ गॉड ऑफ प्लांट्स. और ये किसकी पूजा करते हैं? क्षेत्रपाल. जिसमें यहाँ बताया गया है कि ये जो क्षेत्रपाल गॉड हैं वो हैं पंच श्रीय देवता, यानी कि जिसके 5 हेड्स हैं, 5 सिर हैं. एंड सिम्बलाइज ऑफ गार्डियन ऑफ फील्ड्स, जो रक्षा करता है हमारे खेतों की, खलिहानों की. उसका नाम है क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जो कहेंगे. द सेंट्रल मोटिव ऑफ पालघाट इज सराउंडेड बाय द सीन्स ऑफ एवरीडे लाइफ. यहाँ पे पोर्ट्रे किया है ह्यूमन हंटिंग के सीन्स को यहाँ पे पोर्ट्रे किया है. फिशिंग, फार्मिंग, डांसिंग, माइथोलॉजिकल सीरीज ऑफ एनिमल्स. सो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे. एंड